केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन योर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखा हाउ थॉमसन्स मॉडल वाज चैलेंज्ड बाय रदरफोर्ड। देन रदरफोर्ड कैरिड आउट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस जो थी they were not in accordance with Thomson's model. So Thomson's model was failed. Then up to many years, at least for the 30 years, Rutherford's model was continuously accepted. Everybody was working on it. Research was still carried on. Then there were certain other observations regarding nature of light, because sunlight was the main focus, because it was containing a special type of spectra, that is of hydrogen gas, because sun is a source of hydrogen gas, burning of hydrogen gas. So spectra of hydrogen, it was having 5 type of bands, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। अलग अलग बैंड के अंदर आपने अलग अलग सीरीज पिछले लेक्चर में देखी होंगी, बाल्मर, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चन, फंड, ब्रैकेट। लाइट के डिफरेंट जो हमारे पास रेंज रहती है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, उसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया है और वहीं से हमें पता चला कि अलग अलग बैंड्स आ रहे हैं। उनको उन साइंटिस्ट के नाम पे ही नाम रख दिया गया। देन ड्यूल नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे दैट लाइट इज हैविंग वेव कैरेक्टर, लाइक अ वेव, इट इज हैविंग क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग। देयर वर सर्टेन अदर एक्सपेरिमेंट्स like black body radiation, photoelectric effect, line spectra, as I was discussing just now. तो ये सपोर्ट करते थे उसके पार्टिकल नेचर को। तो अब साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे थे इसके ऊपर और प्लैंक्स ने एक थ्योरी दे दी। जो वेव नेचर है लाइट की, वो कहता है दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस लाइक अ वेव, ये रास्ते में टूटती नहीं है, इट इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। बट प्लैंक ने कहा it is emitted in packets, small packets of light, और उस पैकेट को उसने नाम दिया था फोटोन। and with this concept he was able to explain photoelectric effect as well as black body radiation successfully. Now line spectra, that was also indicating towards a certain type of particle nature. So Planck, he supported that energy of a photon, it is equal to h nu, frequency of light. Energy is directly proportional to frequency of light. Okay, now after these observations there was a question mark on Rutherford's scattering experiment and the observations, the generalization which he has given for the atom. So Bohr, he was also following Planck's, and after studying the Planck's theory, he was able to give a new guidelines for atomic structure of atom. So he studied that according to wave theory, now this is nucleus. Nucleus is positively charged, and according to Rutherford, electron, it is revolving around the nucleus in extra nuclear portion. ये आप लोग पढ़ चुके हैं, right? And this is called orbit. Okay. Now, according to classical theory, whenever a negative charge is revolving around a positive charge, these are two electrostatic charges according to laws of electrostatic. Whenever a negative charge is revolving around a positive charge, there will be, now
when electron is revolving, it is changing its direction. पहले यहां था, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया. देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. It is changing its direction. Means it is undergoing acceleration. It is being accelerated. It is being accelerated. Okay. Now when it is being accelerated while revolving around the nucleus, nucleus के around revolve करते हुए ये इसको acceleration मिल रही है. Then एक opposite charge के around जब ये charge घूम रहा है, ये positive और ये negative, there will be emission of energy. There will be loss of energy. Every step के ऊपर there will be loss of energy. It means ये तो रदरफोर्ड का था कि इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के अराउंड घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हर सर्कल के साथ इलेक्ट्रॉन यहां था. With every circle there will be loss of energy. It will emit energy. And ultimately ये जो सर्कल है ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए. ये जो थ्योरीज हम पीछे पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से तो इस तरीके से होना चाहिए कि स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, समा जाएगा, खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं. अगर ये ऐसा हो जाता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कल काटते काटते, क्योंकि ये तो श्योर है कि जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में मूवमेंट करते हैं, एक फिक्स रख लिया और दूसरा उसके अराउंड घूम रहा है, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी. तो उस हिसाब से स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इसको इसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. देन व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इट वाज अ क्वेश्चन मार्क. इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. सो दिस थ्योरी वाज फेल्ड. एक रीजन तो ये था. ठीक है. दूसरा, वो जो लाइन स्पेक्ट्रा आया था हाइड्रोजन का, line spectra of hydrogen atom, Rutherford was not able to explain that 5 different series obtained in spectra of hydrogen. So these two question marks to the Rutherford's model of an atom, they were quite enough to get it rejected. So Bohr came up with new points for एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो उसके हिसाब से, बोहर के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहली बात, जो पॉइंट्स वो पीछे कहकर आया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके हिसाब से अब ये जितना भी मॉडल है ना बोहर का, एक चीज इसको ध्यान रखना, ये मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है. ये किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. मींस जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा. तो इसके हिसाब से इसने कहा दैट इन एन हाइड्रोजन एटम electron revolve around the nucleus in circular path having fixed radius and fixed energy. It was the main point that दिस इज न्यूक्लियस, ये रही सर्कुलर पाथ जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. बोला इसने भी इसको ऑर्बिट ही, रदरफोर्ड ने भी ऑर्बिट बोला था, इसने भी ऑर्बिट बोला, लेकिन चेंज क्या आया? रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला था कि फिक्स्ड है, उसने बोला उसके अराउंड घूमते हैं. ठीक है, सर्कुलरली उसके अराउंड वो घूमते हैं. तो बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ये रहा न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, बट दैट सर्कुलर पाथ इज फिक्स्ड। अब ये फर्स्ट सर्कल, ये लीजिए सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, यहां सेंटर से यहां तक एक रेडियस R1, यहां से सेकंड रेडियस R2, यहां से थर्ड रेडियस R3, ये भी फिक्स है। ये पूरे सर्कल का सेम रेडियस होगा, सेकंड सर्कल का सेम रेडियस होगा, थर्ड सर्कल का सेम रेडियस होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसको उसने बोल दिया दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पाथ। ये अपनी जगह पे फिक्स हैं क्योंकि फिक्स्ड रेडियस फिक्स्ड एनर्जी, तो दीज ऑर्बिट्स दे वर कॉल्ड स्टेशनरी पाथ। दिस वाज द सेकंड पॉइंट, जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं दे आर नोन एज स्टेशनरी पाथ। ओके, अब देखें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप नहीं कर सकता, ये सेकंड वाला थर्ड में जंप नहीं कर सकता, फर्स्ट वाला थर्ड में जंप नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। तो ये जो इसका स्टेशनरी पाथ या स्टेशनरी स्टेट, ये इसकी ये तो पाथ तो है जो फॉलो करेगा, और ये उसके लिए स्टेशनरी स्टेट कि ये थर्ड शेल में ही रहेगा, तो उसकी स्टेशनरी स्टेट आई थर्ड शेल। फर्स्ट में रह रहा है तो उसकी स्टेशनरी स्टेट आई फर्स्ट शेल। ठीक है, जब तक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी ना मिले ये यहां से यहां जंप नहीं कर सकता। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूं, इसके थर्ड पॉइंट को। ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ठीक है, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आपको पता है छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, फर्स्ट शेल को आप बोलते हो के शेल, एल, एम, एन एंड सो ऑन। अब ये जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी है E1, सेकेंड शेल की एनर्जी है E2, थर्ड शेल की है E4, फोर्थ शेल की है, थर्ड की है E3 एंड फोर्थ की है E4। ठीक है, अब इसी तरीके से ये फर्स्ट शेल E1, सेकेंड शेल E2, थर्ड शेल E3, फोर्थ शेल E4। मैं इसे ब्रैकेट में ले लेती हूं। अब जो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में प्रेजेंट है वो अपने आप से अपनी शेल को छोड़कर किसी दूसरी शेल के अंदर नहीं जा सकता। कि मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां से अगर इसको यहां जंप करना है तो इतनी एनर्जी इसको मिलेगी तभी जंप कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये रहा फर्स्ट शेल के शेल तो उसकी एनर्जी किसके बराबर है, E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमेशा आपको पता है NH न्यू के बराबर होती है, E इज इक्वल टू NH न्यू। तो E1 H न्यू, सेकेंड शेल L शेल तो कितनी होगी E2 2H न्यू, थर्ड शेल M शेल इसकी कितनी होगी E3 3H न्यू, फोर्थ शेल E4 तो इट विल बी 4H न्यू। ठीक है, अब अगर इसको यहां से यहां जाना है, अगर इसको फर्स्ट शेल से जाना है सेकेंड में, इसकी एनर्जी है EH न्यू, इसकी है एनर्जी 2H न्यू। दोनों में डिफरेंस कितना आया E2 E1, डेल्टा E E2 माइनस E1 2H न्यू माइनस 1H न्यू, कितना आया इन दोनों में डिफरेंस H न्यू डेल्टा E। मतलब कहने का कि अगर इसको फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो इसको कितनी एनर्जी की रेडिएशन स्ट्राइक करनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए E इज इक्वल टू NH न्यू, उसकी एनर्जी होनी चाहिए E इक्वल टू NH न्यू। ये बाहर से लाइट इसके ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। अब ये जो लोअर स्टेट है
लोअर स्टेट और जो स्टेशनरी स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, स्टेशनरी स्टेट, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और जो जंप करके हायर स्टेट में गया आफ्टर जंप, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, इसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो किस स्टेट तक जाएगा? अब देखिए, अगर इसको फर्स्ट से थर्ड को जाना है तो दिस इज E1 इज इक्वल टू एच न्यू एंड E3 इट इज 3h न्यू। तो दोनों में डेल्टा E कितना आना चाहिए? 3h न्यू माइनस h न्यू, कितना आना चाहिए? 2h न्यू। मींस अगर यहां पे रेडिएशन टकरा जाती है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इलेक्ट्रॉन को इस रेडिएशन की एनर्जी है 2h न्यू, तो ये 1h न्यू, ये 2h न्यू, इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा थर्ड शेल में पहुंच जाएगा। तो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, उतना ही जंप इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू बोहर, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है, वो अपनी मर्जी से अपने आप अपनी शेल को छोड़कर दूसरी शेल में नहीं जा सकता। कब जाएगा? When certain wavelength will strike here, a radiation of certain energy will strike, electron will get energy and move to excited state. अब उस एक्साइटेड स्टेट से वापस भी आएगा वो, तो जितनी एनर्जी लेकर वो हायर वाली शेल में गया था, जब वो वापस आएगा उतनी ही एनर्जी वो ऐसे एमिट कर देगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को अगर मैं यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट से बताऊं आपको, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहां पे था और ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये ले ली मैंने थर्ड। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, कितनी एनर्जी लेकर गया? h न्यू। ठीक है, यहां से यहां आएगा तो उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा। अगर यहां से थर्ड में गया तो कितनी लेके गया? 2h न्यू। और जब यहां से वापस आएगा तो एमिट भी कितनी करेगा? 2h न्यू। तो इस तरीके से ये स्टेट है ग्राउंड स्टेट, ये होगी एक्साइटेड स्टेट और ये भी क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट। तो डेल्टा E किसके बराबर होगा? हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट। तो इस तरीके से इसका जो थर्ड रूल था, थर्ड पॉइंट था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए, कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने घर में रहते हैं, अपनी अपनी शेल में रहते हैं, until और unless रेडिएशन ऑफ सर्टेन एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन इट। जैसे ही रेडिएशन आएगी, इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, अपना घर छोड़कर वो हायर स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ देयर जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और इन लाइंस को, ये जो शेल्स हैं अलग अलग, हमने इनको नाम दिया है, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी अगर आ जाती है तो एम के बाद ओ शेल, इसकी एनर्जी होगी E5। तो इस तरीके से अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ओके, एनर्जी फिक्स हो गई। फिक्स मतलब क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड है, एनर्जी पैकेट्स में आती है। ये EH न्यू, ये कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? दिस इज प्लैंक्स थ्योरी, कि E इज इक्वल टू NH न्यू। फर्स्ट शेल है तो 1, सेकेंड शेल है तो 2h न्यू, मैंने यहां पे लिखा है पहले से। तो ये कहां से आया? इट वॉज फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी। तो बोहर का मॉडल इट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब बोहर ने कहा ये शेल्स तो फिक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट उसने ये बोला दैट रेडियस एंड एनर्जी इज फिक्स्ड, और आपने देख भी लिया, फर्स्ट वाले की एनर्जी E इक्वल टू 1h न्यू, सेकेंड वाले की एनर्जी E इज इक्वल टू 2h न्यू, थर्ड वाले की 3h न्यू, इस तरीके से। तो अगले पॉइंट में ये कहता है लाइक फिक्स्ड एनर्जी दे हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, or that is MVR, this is angular momentum, it is NH upon 2 pi, NH upon 2 pi। अब देखिए इसका मतलब क्या है? तो like energy means their angular momentum is also quantized, fixed है, quantized है मतलब fixed है। n is equal to 1, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में रहना है तो उसका
एंगुलर मोमेंटम MVR मीन्स एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, n की जगह आ गया 1 h अपॉन 2 पाई और h अपॉन 2 पाई, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, MVR एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी h अपॉन पाई। फॉर थर्ड शेल एंगुलर मोमेंटम विल बी 3/2 h अपॉन पाई। तो ये आ गया, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3/2 h अपॉन पाई, और इट इज 1.5 h अपॉन पाई। एंड फॉर n इट इक्वल टू 4, जब हम फोर्थ शेल की बात करें, इट इज 4h अपॉन 2 पाई, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2h अपॉन पाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस रूल को फॉलो करता है, देन इट विल बी अलाउड टू स्टैंड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, रिस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ। तो यहां से पता चल जाता है दैट दे आर हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, दे आर हैविंग फिक्स्ड रेडियस, एंड ऑल्सो दे आर हैविंग फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो इस तरीके से ये थे मेन पॉइंट्स बोहर्स मॉडल के, that electrons are revolving around the nucleus in circular path having fixed radius and fixed energy. Okay. इलेक्ट्रॉन के उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम बोल देते हैं स्टेशनरी पाथ। जिस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। अब एक चीज देखिए, स्टेशनरी का होता है फिक्स्ड, मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेट स्टेशनरी है, स्टेट स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स नॉट स्टेशनरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं। फिक्स क्या है, ये पाथ, ये ट्रैक अपनी जगह पे है। जैसे आप रेस का ट्रैक देखते हो ना, एथलीट ऊपर भागते रहते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पाथ पूरे स्टेडियम में एज इट इज ही रहता है, अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। तो ये पाथ फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। फिर फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, आप इसको शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इस रूल को फॉलो करेगा, n इज इक्वल टू 1, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम इट इज होल नंबर मल्टीपल n ऑफ h अपॉन 2 पाई। सेकेंड शेल के लिए ये वैल्यू आनी चाहिए, थर्ड शेल के लिए ये वैल्यू आनी चाहिए, और फोर्थ शेल के लिए, ओके। नाउ इन बोहर्स मॉडल देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और हम इनको क्या नाम देकर आए, शेल। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हर शेल का फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी। नाउ क्वेश्चन इज, how many electrons can reside in first shell, second shell, third shell, fourth shell? Is the number same or different? Yes, it is different for different shells. किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स, इट इज गिवन बाय 2n square. It's a formula. It is given by 2n square. Okay. Now, let us n, and here number of electrons. n is equal to 1 means कौन सी शेल आ गई, k शेल। तो इसके लिए किसके बराबर होगा, 2 into 1 square, कितने आ गए 2। l शेल means n कितना हो गया 2, तो it will be 2 into 2 square, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। m शेल, n इज इक्वल टू 3, देखो m के लिए थर्ड शेल है ना ये, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। n के अंदर 4, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
लेट इट बी 16, 17, 18 और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने रहेंगे 32. Now this is the maximum number which an atom can accommodate in a particular shell, right? तो इस तरीके से बोहर का मॉडल हमें डिफरेंट जानकारियां देता है रिगार्डिंग इट्स रेडियस, एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें रिजाइड कर सकते हैं और कितने वेज के साथ वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जंप कर सकते हैं. और तरीके से बोहर ने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एटॉमिक मॉडल नए सिरे से दिया. बट प्रॉब्लम यही थी कि ये वाला जो मॉडल था एवरी एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था. बट इस पर्टिकुलर मॉडल ने जो पॉइंट्स हमारे पास उसने दिए, दे वर क्वाइट एनफ टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, एज इट वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक. देन इट वॉज एबल टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, क्योंकि एनर्जी क्या थी फिक्स्ड. उसने कहा था फिक्स्ड होती है, कितनी होती है हमने कैलकुलेट करी. इसीलिए बोहर ने ही कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया. मैं बताती हूं इसका. इट वॉज एबल टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एवरी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो एनर्जी इसकी एप्लीकेशंस में आ जाता है. एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी? इट वॉज En is equal to -1312 upon n square. तो इस फॉर्मूला के साथ दिस इज किलो जूल पर मोल. आप किसी की भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते थे. अगर n इक्वल टू फर्स्ट शेल के लिए E1 इट विल बी -1312 upon 1 square, -1312 किलो जूल पर मोल. फॉर सेकेंड शेल इट वॉज E2 -1312 upon 2 square. तो इट वॉज -1312 अपॉन 2 2 जा 4. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए. 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, -328 किलो जूल पर मोल. सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3 इट विल बी E3 -1312 अपॉन 3 स्क्वायर. इट वॉज -1312 3 3 जा 9. इट वॉज divided by 9. For n equal to 4, it was E4 -1312 upon 4 square. तो 1312 upon 4 4 जा 16. तो आप इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए. तो बोहर्स मॉडल helped to calculate energy of every shell present in hydrogen and hydrogen-like atoms. Right? तो ये कई बार पेपर में आता है कि हाइड्रोजन की थर्ड शेल की एनर्जी निकालिए. तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला En इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल. n बताता है शेल का नंबर क्या है, शेल नंबर क्या है. ओके. अब एनर्जी के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की, उसमें 5 तरह की सीरीज आ रही थी. अरे भाई ये सीरीज क्यों आ गई, कहां से आ गई? रदरफोर्ड का मॉडल तो बता ही नहीं पा रहा कि ये सीरीज क्यों आई, जबकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब उससे पहले देखिए, ये एक स्टेयर है. सबने देखी हुई ऐसी वाली सीढ़ियां अपने घर में. ठीक है, बैम्बू की सीढ़ी. अब एक स्टेप यहां, जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हो एक स्टेप यहां होता है, दूसरा यहां होता है. फिर पहले वाला यहां रखेंगे, दूसरे वाला यहां आएगा. कभी ऐसा होता है कि आपका पैर आपने हवा में रख दिया हो? It never happens. उसी तरीके से this is first shell, second shell, third shell, fourth shell and fifth shell. आप इतना गैप क्रॉस कर सकते हैं तो आप फर्स्ट से सेकंड पे रखेंगे. छोटा बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता. ठीक है. ओके. अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप यहां से यहां जंप कर सकते हैं, आप 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ सकते हो. कुछ बच्चे करते हैं ऐसी शरारतें भी. मतलब आपकी कैपेबिलिटी है तो आप यहां से डायरेक्ट 2 जंप भी कर जाओगे. राइट. क्योंकि फिर कैपेबिलिटी की बात आ गई ना, तो वहां उधर एनर्जी की बात होती है. ओके. अब जब चलो यहां पहुंच गए, वापस आने का तरीका भी क्या है? हो सकता है आप एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं, बीच में कहीं डबल जंप कर लिया हो, या यहां से डबल जंप मार दिया हो. इसी तरह किसी भी एटम के अंदर, ये फर्स्ट शेल ले ली मैंने, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल. ठीक है. ये फर्स्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2,
3 4 5, आप जितनी मर्जी बना लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके पहुंच गया यहां पे, तो इसका डेल्टा ई किसके बराबर होगा? इट विल बी E5 माइनस E1, ऐसे ही होगा ना। डेल्टा ई किसके बराबर होगा? 5h न्यू माइनस h न्यू, मीन्स उसको 4h न्यू की एनर्जी मिली और यो फर्स्ट से फिफ्थ शेल में जंप कर गया। ओके, अब मैं इसको थोड़ा इधर से हटा देती हूं। अब इसी तरीके से यहां से जितनी भी एनर्जी लेकर ये गया, ये टोटल गैप कितना हुआ? 1 2 3 4, एक एच न्यू, 2 3 4, देखो 4 ही आ रहे हैं। 4h न्यू एनर्जी लेकर ये ऊपर चला गया। ओके, अब वापिस आने के तरीके देखो कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात, हो सकता है ये पूरा जंप ऐसे कर जाए, तो कितना जंप लगाया इसने? देखिए 4h न्यू का। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहां से पहले इसने एक स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप और लास्ट में पहुंचा। 4 तरीकों से आया। तो यहां देखो 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, हो गए 4h न्यू। ये सेकंड उसका तरीका हो गया, ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। ओके, फिर एक तरीका और लगाया इसने, फर्स्ट वाले को डबल जंप किया, आगे ये सिंगल सिंगल आया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पे 2h न्यू, यहां पे h न्यू, यहां पे h न्यू, अगेन टोटल 4। ओके, अब ये हो सकता है यहां इसने 1 स्टेप लिया, यहां पे 2 लिए, यहां 1 ले लिया, h न्यू, 2h न्यू, h न्यू। तो किसी भी तरीके से आए, यहां डबल किया, यहां डबल किया, ये दूसरा तरीका था, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा तरीका। तो ये भी 2h न्यू, ये भी 2h न्यू। तो ऐसे जितने भी आप लोग बना सकते हो अलग अलग तरीके, मींस इलेक्ट्रॉन ऊपर गया जरूरी नहीं है वो सीधा ही जंप नीचे करेगा। उसका अपना तरीका है कि वो स्टेप बाय स्टेप आ सकता है, वो डबल जंप कर सकता है, वो एक सिंगल, 2 डबल, एक सिंगल कर सकता है। नंबर ऑफ, उसके पास बहुत से वेज हैं। इट हैज मेनी वेज, मेनी डिफरेंट पाथ्स टू कम डाउन। कहां, किस जगह पहुंचेगा वो? जो सबसे लोएस्ट था उसकी फर्स्ट शेल, इट वॉज इट्स स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और पहुंचा कहां? सबसे ऊपर, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी लेकर गया, जब वो वापस आएगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, तो वापस आने के भी उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 5 मेथड्स तो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसके अलावा आपके माइंड में इससे भी ज्यादा आ रहे होंगे। तो ये चीज तो बहुत बता चुका है कि ऐसा है भाई, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो वेवलेंथ, जिस एनर्जी की रेडिएशन स्ट्राइक करेगी, उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़कर कहां पहुंचा, और फिर अपने घर वो वापस भी आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया, बिकॉज इट वॉज द बेस। ध्यान से देखिए, इट वॉज द बेस फॉर, कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा इसको। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर लेट्स फाइंड आउट। अब मैं यहां से इधर से बना लेती हूं, मुझे पूरा बोर्ड यूज करना पड़ेगा। एक फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9. 9 आर इनफ। ठीक है, अब देखो, दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कहां तक? n इंफिनिटी तक। ठीक है, नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं अब 9th से ही स्टार्ट कर रही हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा
और कहां आके टिकेगा, N1 पे। अगर ये 8 से स्टार्ट करेगा, where it will reside again at 1. If it jumps from 7th shell, it will again reside in 1. From 6th, one, from 5th, 1, 4th, 1, 3, 1, 2, 1. तो सबसे पहली जो सीरीज है, इट इज लेमन सीरीज। ठीक है, तो लेमन सीरीज में क्या हुआ, n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 1। ठीक है, n2 आया इंफिनिटी और n1 क्या आया, 1। आपने रीडबर्ग फॉर्मूलाज में देखा था। तो n इंफिनिटी से लेकर 1 पे आके ये टिक जाएगा। ओके, अब देखो सेकंड हमारे पास था बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में इंफिनिटी से टिकेगा आके 2 पे, 1, from 8, from 7, from 6, from 5, 4, 2। तो ये रही बाल्मर सीरीज। और इसमें क्या हुआ, n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 2। अब थर्ड नंबर के ऊपर है हमारे पास पैशन। तो पैशन के अंदर हायर टू थर्ड से ऊपर जितनी भी होंगी उससे हम इसको, ये रहा पैशन सीरीज। तो पैशन सीरीज के अंदर n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर n होगा 4। तो फ्रॉम हायर टू n इक्वल टू 4, 8 से 4, 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4। तो दिस इज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 4, and now we are left with only one, and that is font series. This is font series. तो इसमें n infinity to n equal to 5. This is not 2, this is infinity. n infinity to n 5. ठीक है, अब बोहर ने देख लीजिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उसके हिसाब से ये रही सीरीज, ये रहा N1 और ये रहा N2। सीरीज सबसे पहले हमारे पास है लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। लेमन के लिए N1 वो कहां आके रुका, 1 पे, बाल्मर के लिए 2 पे, पैशन के लिए 3 पे, ब्रैकेट के लिए 4 पे और फंड के लिए 5th पे। और हायर का था, ये 1 था ना, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 2 के लिए 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। 3 के बाद 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। 4 है तो कहां से स्टार्ट करेगा, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। 5th है 6, 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से बोहर एक्सप्लेन्ड द वेरियस बैंड्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर, जो मॉडल था एटम का, दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट। तो इस तरीके से बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हटाकर हाइड्रोजन एटम का अपना मॉडल दिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ही जस्ट वर्कड ऑन दिस ओनली atomic structure of hydrogen atom? Because hydrogen spectra was the main focus for Bohr's study. ठीक है, और ड्यूल नेचर के ऊपर तो बात चल ही रही थी,
तो बहुत से इसके इस मॉडल से, बोहर के इस मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस विच वर जस्ट अराइज ड्यू टू पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। तो उस तरीके से बोहर मॉडल इट वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड एवरी स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बने रहिए हमारे साथ हमारे आने वाले वीडियोस के लिए, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा हाउ बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट, either it was a wave character or it was a particle character, right? With the passage of time, new discoveries always came up. तो बोहर के मॉडल को कुछ समय तक एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जो गाइडलाइंस उसने दी थी उस हिसाब से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन कर रहा था। ही वॉज फुल्ली अप्लाइंग हिज पोस्टुलेट्स। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्या पढ़ा उसमें, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये वाले जो पोस्टुलेट्स थे ना जो हमने लिखे बोहर्स मॉडल के, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही सीमित थे। दे वर एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मींस जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हीलियम, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मैं कर दूं हीलियम 1 पॉजिटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अगर इसके ऊपर मैं 2 पॉजिटिव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। तो इट वाज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मींस जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था। ओके, तो फिर धीरे धीरे और बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई। जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्कोप बढ़ा, नए नए इक्विपमेंट्स बने, तो स्पेक्ट्रास को और ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया। तो वो कौन से लिमिटेशंस थी, वो कौन से ड्रॉबैक्स थे जो बोहर्स के मॉडल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, दोज वर द फर्स्ट वन, जो बोहर का मॉडल था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का तो एक्सप्लेन कर दिया, तो जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मींस ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर मैं कहूं कि कार्बन का स्पेक्ट्रा ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, कॉपर का स्पेक्ट्रा ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, अदर देन हाइड्रोजन, हीलियम 1 पॉजिटिव एंड लिथियम 3 पॉजिटिव, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, उनके स्पेक्ट्रा के अलावा ये किसी के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जैसे ये स्पेक्ट्रा की लाइंस थी कि यहां से भी इधर पहुंची, इधर से भी इधर, इधर से भी इधर, इधर से भी इधर, और उसके आगे भी जैसे मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो इस लाइन के अंदर भी ऐसे छोटी छोटी लाइंस थी, ऐसे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जंप में नीचे आएगा, हो सकता है कि ये ऐसे आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा हो। तो स्पेक्ट्रल लाइंस के आगे भी फाइन स्ट्रक्चर था, लेकिन वो कहां से आया उसके बारे में हम अपने लेटर जो वीडियोस होगी उनमें बात करेंगे, क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद की बात है, वहां आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन का जो फाइन बिल्कुल बारीक स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, देन इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब यहां किसकी बात हो रही है, स्पेक्ट्रा किसकी वजह से बन रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम स्पेक्ट्रा लेते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो डेविएशन दिखाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब भी वो स्प्लिट कर जाएंगी। आपने देखा था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो ऑपोजिट पोल्स तो अट्रैक्ट करेंगे, बट इफ दे आर सेम पोल्स देन देयर विल बी रिपल्शन। तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इट शोड स्प्लिटिंग। और ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट।
और एक चीज, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी। व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। ये मुझे आपके नोट्स में चाहिए। देन मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी ये स्प्लिटिंग शो करेगी, एंड इट वाज स्टडीड बाय स्टार्क, एंड splitting of spectral lines in magnetic field, it was studied by Zeeman. This is called Zeeman effect. तो ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस आपको अलग से, ये पूरा जब हो जाए तो यहां पे लिखनी है आपने स्टार डाल के। एक आप लिखोगे स्टार्क इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन, और दूसरा आप स्टार डाल के लिखोगे ऐसे जीमैन इफेक्ट, इन दोनों की डेफिनेशन, और ऐसे उसको बॉक्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये मैं वीडियो में बता रही हूं और आपको नोट्स में इसको लिखना है, मैं चेक करूंगी नोट्स प्रॉपर्ली। देन फोर्थ वाज atoms combine to form molecules. Why some molecules are straight, some are trigonal planar, some are tetrahedral, उनकी शेप अलग अलग क्यों होती है? Bohr was not having answer to this question also, that shape of molecules formed by combination of atoms, he was not able to explain कि shape क्यों आई। Then मैंने बोला ना डिस्कवरी चलती रहती है, वर्क चलता रहता है। तो two other scientists, one was Heisenberg and the another was de Broglie. Heisenberg's uncertainty principle and de Broglie's relationship, इन दो साइंटिस्ट के वर्क को बोहर का मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम वाज नॉट सपोर्टिंग। और मैं ऐसे कहूं, बोहर उन दोनों के जो फाइंडिंग्स थी वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब इन दोनों का शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देती हूं क्योंकि इस थ्योरी के साथ रिलेटेड है। अलग से हम अभी नेक्स्ट करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी और डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप भी। अब देखिए, बोहर के हिसाब से जो एटम है, इट इज हैविंग फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड पाथ। तीनों ही चीजें हमें पता है कि एटम जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रही है और हर ऑर्बिट का रेडियस फिक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये बोहर के मॉडल की फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि रेडियस एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो देखिए, रेडियस भी फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है और पाथ भी फिक्स है। मींस आपको रेडियस का पता चल गया, एनर्जी का पता चल गया और पाथ का पता चल गया। मींस आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ढूंढ ली, आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली, it was not possible to find exact position and momentum of an electron। तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी थे। बोहर ने बोला सब पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, एनर्जी क्या है, पाथ क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इन दोनों का कहना यह था that it is not possible, that is why it is uncertainty principle, it is not certain, it is uncertain, not possible to find exact position and momentum of an atom। तो इन जो भी हमारे पास लिमिटेशंस थी बोहर की, उनके चलते बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इट वाज अगेन अंडर मोर क्वेश्चंस that these explanations they were sought by the co-workers and follower of Bohr। so इस मॉडल को छोड़ दिया गया and thereafter there was development of modern concept of atomic model, and that is
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन अभी हम वहां पे शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यह पता करना है व्हाट इज डी ब्रॉगलाइज रिलेशनशिप एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और क्योंकि इन दोनों ने ही बोहर के मॉडल को ट्रैक से हटा दिया। ठीक है, ओके। नाउ टू कंटिन्यू विद द बोहर्स फेलियर, लेट्स टॉक अबाउट डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन और रिलेशनशिप, और कैसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स, मूविंग मटेरियल मेड अप ऑफ मैटर पार्टिकल्स, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है चाहे वो मैक्रोस्कोपिक, मींस चाहे वो इतना छोटा है कि नेकेड आई से नजर ही नहीं आ रहा है, इट मे बी एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग, बीटा रे, गामा रे, एनीथिंग, all moving material particles, microscopic and macroscopic, have dual nature, that is wave nature and particle nature. और मैं इसको एक लाइन में अगर मैं बात कहूं, all moving material particles are associated with wave as well as particle nature. वेव नेचर भी होगी और पार्टिकल नेचर भी होगी। इससे पहले जब आप पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा ध्यान से, जब हम लाइट की वेव कैरेक्टर की बात कर रहे थे तो हाइजन, मैक्सवेल वो सिर्फ वेव कैरेक्टर की बात कर रहे थे, और जब उसके बाद पार्टिकल नेचर की बात आई तो प्लैंक ने पार्टिकल नेचर की बात की। डी ब्रोगली वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने दोनों नेचर्स को इकट्ठा किया। उसने पहली बार ये स्टेटमेंट सबके सामने पुट फॉरवर्ड की दैट ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, कि उनके अंदर वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। टीवी पे आपने ऐड देखी होगी, वो कॉलगेट जेल वाली है ना, कि ब्रश करके चलते हैं तो एक जेल ऐसे लिपटी होती है, जेल की मतलब ऐसे एक वेव लिपटी होती है बॉडी के साथ, सेम उसी तरीके से। अच्छा, आपने टूटता हुआ तारा देखा है, व्हाट इज दैट, दैट इज अ मटेरियल, मूव कर रहा है और आपको उसके साथ वेव दिखाई देती है। ठीक है, तो जो फास्ट मूविंग चीजें होंगी, आपने सुपरमैन की मूवी देखी हो, शक्तिमान देखा हो, कि जब वो बहुत फास्टली मूव करता है तो सिर्फ एक वेव नजर आती है। तो ये साइंटिफिक है कि जब कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ वेव दिखाई देगा ही देगा। पार्टिकल तो वो है ही है, मैटर है तो पार्टिकल है, तो वेव इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू जो डी ब्रोगली का रिलेशनशिप है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, वेयर lambda is equal to wavelength, h is equal to Planck's constant, m equal to mass of object, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक, v is equal to velocity of object। ठीक है, और आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है, डिराइव डी ब्रोगलाइज रिलेशनशिप। डी ब्रोगलाइज के रिलेशनशिप को डिराइव करें। तो जो बच्चे नोट करते हैं साथ साथ, वो साथ साथ नोट कर लिया करें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट मैं इसकी जो डेरिवेशन है मैं उसको स्टार्ट कर सकूं। तो डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई। ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखिए
mathematical derivation of de Broglie's relationship. Okay, we know that अब देखो प्लैंक के बाद की बातें हैं, उन दोनों को इसने इकट्ठा करा है. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E is equal to h nu. First equation. According to Einstein, E is equal to mc square. ये आप दोनों इक्वेशंस को अच्छे से पहचानते हैं. ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो दोनों बराबर हो गए. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया हमारे पास? h nu is equal to mc स्क्वायर. राइट. अब देखिए न्यू किसके बराबर होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. तो एम सी स्क्वायर. एक सी के साथ एक सी कैंसिल. अब एम सी को मैं इधर ले आती हूं, वेवलेंथ को उधर ले जाती हूं, तो ये आ गया एच अपॉन एम सी इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया? वेवलेंथ. अब मैं वेवलेंथ को इधर लिख लेती हूं. वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. आगे सारी चीजें. नाउ सी इज स्पीड ऑफ लाइट. लेकिन जितने भी मेटीरियल पार्टिकल्स जिनको हम डेली यूज में लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सभी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही हो. ठीक है. तो C is speed of light. तो हमने डेरिवेशन करने के लिए किस किस को कंसिडर किया है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन. ठीक है. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन m v. ओके. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन p. p इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी. मास किसका? ऑब्जेक्ट का. वेलोसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की. और ये आ गया लैम्डा. नाउ लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव नेचर को. और मोमेंटम p इज इक्वल टू मोमेंटम, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स पार्टिकल नेचर. इट मीन्स अगर मैं इनको वर्ड्स में लिखूं तो मेरे पास क्या आया? वेव नेचर, वन थिंग मोर, अगर मैं इसको इक्वल टू का साइन हटा दूं, h क्या है यहां पे? प्लैंक्स कांस्टेंट. तो मेरे पास क्या आएगा? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p. वेव नेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. तो ये आ गया वेव नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर. ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स में है. ठीक है. तो न्यूमेरिकली h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी. तो आप एक चीज देखिए, जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी. मास डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस. मास इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस. इसका मतलब यह हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ हो गई स्मॉल. अगर स्मॉल है, वेवलेंथ डिक्रीजेस, देयरफॉर unable to see the object. वेवलेंथ जितनी छोटी होगी आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. लाइट की वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए, ओनली देन द ऑब्जेक्ट विल बी इजीली क्लियरली अवेलेबल टू सी. आप देख पाएंगे बड़ी वाली वेवलेंथ की प्रेजेंस में. तो आप देख लीजिए डेरिवेशन हमने किस तरीके से की है. According to Planck's, E equal to h nu,
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को आपने आमने सामने किया तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यू की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी सी बाय लैम्डा, सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास आया एच अपॉन ये एम सी हम इधर ले आए, लैम्डा नीचे था उसको दूसरी साइड ले गए, इधर लीजिए लैम्डा मैंने इधर लिख लिया इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब क्योंकि जो हमें डेली यूज में ऑब्जेक्ट जिनको वी कम अक्रॉस डेली, तो उनको हम स्पीड ऑफ लाइट नहीं लेंगे, वी विल टेक वेलोसिटी। एंड जब जरूरत पड़ेगी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वेलोसिटी किसकी आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम p। लैम्डा इज वेव नेचर एंड p मोमेंटम, इट इज पार्टिकल नेचर। तो अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएं तो लैम्डा विल बी 1 अपॉन p, क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो वेव नेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। कि अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा होगी तो वेव नेचर कम। पार्टिकल नेचर ज्यादा होने का मतलब अगर मास बढ़ जाता है तो वेव नेचर कम, पार्टिकल नेचर कम होगी। अब इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मुझे इसको हटाकर आपको नेक्स्ट जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है मुझे उस पे आना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि पार्टिकल नेचर बढ़ेगी तो घटेगी, व्हाट डज इट मीन? ये वाली डेरिवेशन आपको पता है, यहां तक आपने नोट भी कर लिया होगा मेरे साथ साथ, आई होप सो। ओके, अब देखिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मैं एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी आपको अभी, लेकिन इधर देखते हैं पहले। अगर इसका मास ज्यादा हो गया तो लैम्डा विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि मास जितना बढ़ता जाएगा वेवलेंथ उतनी छोटी होती जाएगी। हम अपनी डेली लाइफ में किन चीजों को देखते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक? छोटी से छोटी चीज आपने क्या देखी होगी, छोटा सा सैंड का पार्टिकल देखा होगा, या नमक, सॉल्ट जो पिसा हुआ नमक, उसको आप अलग करने की कोशिश करो, उसका भी एक पार्टिकल आप देख सकते हो। चींटी देखी होगी, टेनिस की बॉल देखी होगी, क्रिकेट की बॉल देखी होगी, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम। जितना मास ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, तो हमें वेवलेंथ नजर नहीं आएगी। यही रीजन है हमारे सामने से कोई गाड़ी बड़ी तेजी से निकल जाती है तब भी हमें उसके साथ एसोसिएटेड वेव नजर नहीं आती। क्रिकेट की बॉल जाती है हमें उसके साथ एसोसिएटेड वेव नजर नहीं आती, क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप का हमारी डेली लाइफ के साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कहां पे है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, but it is applicable to all, both microscopic as well as macroscopic। लेकिन अगर हम ये कहें, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप इन आवर डेली लाइफ, वी कम अक्रॉस large objects in our daily life, therefore wave associated with those large objects is not visible to our eyes, therefore it has no significance in our daily life, because we come across large object और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को हम डेली के डेली देखते हैं, राइट? तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, लेट मी सॉल्व वन न्यूमेरिकल फॉर यू पीपल, जिसमें आप ये देखेंगे कि मास का इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहता है अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ बॉल। ओके, कंपेयर wavelength of an electron and a ball। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा बॉल। इलेक्ट्रॉन का मास, बॉल का मास मैंने ले लिया, लेट इट बी 100 ग्राम्स। ठीक है, नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो मुझे इसको भी किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 अपॉन 1000, तो ये आ गया 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम।
बॉल का मास हमारे पास आ गया 0.1 किलोग्राम। और कंपेयर वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ बॉल, स्पीड हम सेम लेंगे दोनों की, मूविंग विथ सेम स्पीड से 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है उसकी। लेट अस कंपेयर नाउ वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बॉल, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, h अपॉन mv। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। h इज इक्वल टू 6.62 10⁻34, मास इज 9.1 into 10⁻31 into velocity 10⁵. Here 6.62 10⁻34 0.1 into 10⁵ meter per second. Now let us solve it further. ये हमारे पास आया 6.62 divided by 9.1 into 10⁻34, -31 ऊपर जाके हो गया +31, 5 ऊपर जाके माइनस हो गया -5। तो देखें 34 में से 31 गए तो कितने आए, चलो पहले इनको कर लो, टोटल हो गया -39, -39 में से 31 चले गए तो कितने आए 8। तो ये रहा 6.62 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻, किस में आएगा ये माइनस में, -8। क्लियर। अब 6.62 को जब आप 9.1 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.727 इंटू 10⁻⁻8। अब ये डेसिमल मुझे आगे चाहिए, 7.27 आगे को गया तो 10⁻⁻9, तो वेवलेंथ आया 10⁻⁻9 मीटर, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर सॉल्व करें। 6.62 डिवाइडेड बाय 0.1, 10⁻34 -5। 6.62 को 0.1 से हम कर रहे हैं तो मैं ऐसे कर लूं, 6.62 नीचे रहा 1, इसका 10 ऊपर चला गया, इसका डेसिमल हटाया और ये 10 चला गया ऊपर। ठीक है, और इधर 10⁻34 एंड 5 -39। अब ये एक इसमें से माइनस हो गया तो ये रहा 6.62 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। दिस इज वेवलेंथ ऑफ बॉल, ये बॉल की वेवलेंथ है, राइट। अब आप एक चीज देखिए, -9 -38 वेवलेंथ में कितना डिफरेंस है। -38 इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि देखने का सवाल ही नहीं होता। एंड दिस इज 10⁻⁻9, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन देखो कितनी ज्यादा है, मतलब एक के नीचे 9 जीरोस मीटर का 10⁻⁹ पार्ट और वो 10⁻⁻38 पार्ट सी, तो वेट कितना है, जस्ट 100 ग्राम। तो अगर आप ये देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, लेट से 100 ग्राम की जगह अगर यहाँ पे 100 किलोग्राम होता तो यहाँ 100 आ जाता, 1000 होता यहाँ 1000 आ जाता। तो 1000 ग्राम्स 500 ग्राम्स। अब गाड़ी का वेट कितना है, ट्रेन का वेट कितना है, कितनी भी तेजी से चला लो उसके साथ एसोसिएटेड वेव इतनी छोटी होगी दैट इट विल नॉट बी एबल टू बी ऑब्जर्व्ड, हम उसको देख ही नहीं सकेंगे। तो यही कारण है डी ब्रोगली इक्वेशन का हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका मतलब कंपैरिजन आपने किया तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ बॉल। इसको आप लास्ट में लिखेंगे। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये मैंने अभी करते करते यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप लास्ट में इसका जो कंपैरिजन लिखेंगे मैं इधर कर देती हूं। Therefore, wavelength of electron is larger than wavelength of a ball moving with
सेम स्पीड। अदरवाइज अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, आप यहाँ पे जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप उसको स्पीड ऑफ लाइट भी पुट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, बट क्योंकि सेम स्पीड लेनी थी इसलिए कंपैरिजन जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट न्यूमेरिकल नोट करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। ओके, तो डी ब्रोगली इक्वेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में।